جزاک اللہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں اپنے پرانے تعلیمی ادارہ جہاں پہ میں 45 سال پہلے داخل ہوا تھا اور 40 سال پہلے یہاں سے فارغ ہوا تھا، 1978 سے 83 تک میں یہاں پہ رہا، اور بیٹا میرا آپ کا ایک تعلق ہے، وہ تعلق یہ ہے کہ میں بھی آپ کی طرح اسٹوڈنٹ ہوں، میں اولڈ اسٹوڈنٹ ہوں اور آپ موجودہ اسٹوڈنٹ ہیں، اس لیے آپ اور ہم دونوں ہی اسٹوڈنٹ ہیں، ساتھ موجودہ اور پرانے کا علیحدہ لہجہ پہ ہے۔ تو بیٹا اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے میں چند باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا، اور ایک بات ہی ہوتی ہے جو انسان کی زندگی کو تبدیل کر دیتی ہے۔ اس میں ایسا ہے کہ جیسے یہ 6 ستمبر کا دن ہے، ہم یوم دفاع کے طور پہ اکٹھے ہیں، تو یہاں پہ میں مثال آپ کو دوں گا، اسٹوڈنٹ آپ ہی کی طرح کا اعتزاز حسین بنگش جہاں پہ دہشت گرد نے حملہ کیا اور اس نے پورے سکون کو محفوظ کرتے ہوئے اس دہشت گرد کو پکڑا اور جام شہادت نوش کیا۔ ہم مسلمانوں کو کوئی خوف زدہ نہیں کر سکتا، کیونکہ مسلمانوں کے دشمن موت سے ڈرتے ہیں اور مسلمان جو ہیں شہادت کو پانے کے لیے موت کو گلے لگاتے ہیں۔ تو اس لیے موت کوئی بری چیز نہیں ہے اگر شہادت کی صورت میں آئے، کیونکہ صحابہ کرام نے، اہل بیت نے شہادت کی زندگی اور شہادت کی موت کی تمنا کی۔ اس لیے اپنے آپ کو ایمان کو تازہ رکھتے ہوئے ہر وقت تیار رہیں کہ ہمیں موت آ سکتی ہے، لیکن موت آئے تو خاتمہ ایمان پہ ہو، یہ آپ کے لیے جہان سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ اور دوسری بات بیٹا میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنی سوچوں کو پازیٹیو کریں اور اس طریقے سے پازیٹیو کریں کہ آپ کا ہر عمل سنت کے مطابق ہو، اور پھر آپ کا ہر کام جو ہے وہ عبادت ہے، چاہے آپ جو بھی کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، سو رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، چل رہے ہیں، سنت کے مطابق ہوگا تو آپ ہر وقت عبادت کر رہے ہیں۔ اور دوسری بات بیٹا ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ محنت کریں، محنت میں عظمت ہے۔ القاسم اور حبیب اللہ محنتی اللہ تعالیٰ کا دوست ہے۔ اب محنت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک گدھوں جیسی ہے اور ایک انسانوں جیسی ہے۔ اب میں گدھوں جیسی مثال دیتا ہوں۔ گدھے کب محنت کرتا ہے؟ جب اس کو چھڑی لگتی ہے۔ انسان کب محنت کرتا ہے؟ جب اس کے شعور میں وہ چیز آتی ہے۔ انسان اور مثال یہ ہے کہ انسان بھی کبھی کبھی گدھا بن جاتا ہے۔ گدھوں کی مثال کیا ہے؟ سوچ جب وہ استعمال نہیں کرتا۔ مثال کے طور پر ہر طالب علم کو اس کے ٹیچر، اس کے والدین، اس کے بڑے بھائی، ارد گرد کے باشعور لوگ بتاتے رہتے ہیں کہ بیٹا محنت کرو، لیکن وہ محنت نہیں کرتا، کیونکہ اس وقت اس کو ذہن لڑانے کی ضرورت ہوتی ہے، ذہن میں بات اٹھانے کی ضرورت ہوتی ہے، نہیں کرتا۔ پھر 20-22 سال کی عمر سے لے کر 60-70 سال کی عمر تک جب زمانے کا اسے ڈنڈا لگتا ہے تو وہ پھر جو 2-3 گھنٹے پڑھتا نہیں تھا، پھر 8-8 10-10 گھنٹے ڈیوٹیز دیتا ہے، دھوپ اور چھاؤں میں ڈیوٹی دیتا ہے، اور اس کو ڈیوٹی کا معاوضہ بھی کم ملتا ہے۔ اور وہ محنت کتنے عرصے لمبے کی ہوتی ہے؟ ڈیلی 8-10 گھنٹے کم از کم، اور 20 سے لے کر 65 سال تک 40-45 سال یا کم و بیش اتنی ہوتی ہے۔ تو یہ کیا ہوتی ہے؟ گدھوں جیسی، کیونکہ اس میں اس وقت زمانے کا ڈنڈا لگا
तो उसने मेहनत शुरू की। इंसानों की मेहनत क्या होती है कि जब वो मैट्रिक में, स्कूल में, कॉलेज में होता है तो कहीं से उसे रहनुमाई मिलती है तो वो मेहनत शुरू कर देता है। वो मेहनत कितनी होती है स्कूल कॉलेज के अलावा? 4 घंटे मैक्सिमम, और उसमें कैद नहीं है, कैद नहीं है कि धूप में भी करनी है, बारिश के अंदर भी करनी है, साथ में बैठ के पढ़ सकता है, लिहाज में बैठ के पढ़ सकता है, पंखे या बगैर पंखे के पढ़ सकता है। सिर्फ 5-6 साल पढ़ना है, और फिर जब जमाने में जाना है उसने एक बेहतरीन इंसान होना है, जमाने के लिए मुफीद होना है ज्यादा, उसको उस बंदे की निस्बत कम काम करना पड़ता है लाइफ में, मुआवजा उससे 10 गुना ज्यादा बढ़ता है। तो ये इंसानों जैसी मेहनत। तो बेटा इंसानों जैसी मेहनत करने की आदत बनाए। वालिदैन आपसे मोहब्बत करते हैं और वालिदैन से कई गुना ज्यादा अल्लाह ताला आपसे मोहब्बत करता है। जितनी इंसान खुद से मोहब्बत नहीं करता उससे ज्यादा उसके वालिदैन और अल्लाह ताला की जात मोहब्बत करती है। इंसान खुद को दुखों में डालता है पॉजिटिव चीज से, मुस्बत रास्तों से हटकर, लेकिन खुद परेशान होता है। जबकि अल्लाह ताला की जात तौबा करने की तलकीन करती है और उसे अपने पास बुलाती है। उस रास्ते पे चले, अल्लाह ताला इंतजार करता है कि मेरा बंदा तौबा करके मेरी तरफ आए। कमी बेशी आपकी लाइफ में होती रहेगी, लेकिन हम मुसलमान हर वक्त तौबा करके अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामते हुए हक के रास्ते पे चले तो आपकी जिंदगी भी बेहतरीन होगी, आखिरत भी बेहतरीन होगी। और दूसरी बात, बेटा जब दुनिया को पता चल जाए कि आप लोगों की इज्जत जान माल के लिए बेहतर सोचते हैं, अल्लाह ताला आपसे मोहब्बत करेगा। अजनबी बंदा भी आपसे मोहब्बत करेगा जब उसको यकीन हो जाएगा, चाहे दुनिया के किसी कोने में। तो ये बात होगी तो जलील ख्वार हो जाएंगे। और मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ कि आप ही की तरह मैं यहाँ पे स्टूडेंट था। मैट्रिक में मुझे गेम्स करने का शौक पैदा हुआ। शौक या जुनून हर किसी को होते हैं, लेकिन किसी का 4 महीने चलता है या थोड़ा सा अरसा चलता है। जब ये रुकता नहीं है तो फिर उसके बाद पहले तकलीफ होती है, लोग आप पे तनकीद भी करते हैं जब आप क्रेजी होकर किसी काम पे लगते हैं। लेकिन टारगेट और गोल पे नजर रखते हुए आप मेहनत करते चले जाएं। और मैं आपको मिसाल देता हूं कि हमारे वक्तों में इतनी रहनुमाई नहीं होती थी और इतना शऊर नहीं होता था, ज़राए अबलाग भी इतने नहीं थे, सहूलतें भी नहीं थी और डिजिटल मीडिया और ये चीजें भी इतनी नहीं थी, कोचिंग की सहूलतें भी नहीं थी। लेकिन हम लगे रहे। हम कॉलेज की एक पोजीशन के लिए तरसते थे। मैं मिसाल दूं, फिर वही हुआ कि कॉलेज में एक पोजीशनें ले ली, रिकॉर्ड कैम किए, बेस्ट स्टेट बने, पंजाब यूनिवर्सिटी जीता, पाकिस्तान यूनिवर्सिटी जीता, स्टडीज में पाकिस्तान पंजाब टॉप किया, अपनी यूनिवर्सिटी को पब्लिक कमीशन में टॉप किया। और फिर एक वक्त आया कि इंडिया के मिनिस्टर ने हमारे मेजबान की मिन्नत की कि मेरी बेटी की शादी पे पाकिस्तानी टीम को बुलाया जाए ताकि मेरी बेटी की शादी ज्यादा इज्जत का बायस बने। तो दूसरे मुल्कों में भी हमारी आवाज नहीं जाती थी। लोग तहफ देते हैं, ऑटोग्राफ लेते हैं, सेल्फियां बनाते हैं, प्राइजेस गिफ्ट करते हैं और जो आपको अंदाजा नहीं इतनी इज्जत मिलती है, मोहब्बत मिलती है, फाइनेंस भी मिलते हैं पॉजिटिव तरीके से। तो उसमें बेटा पॉजिटिव होकर चलने की कोशिश करें। हमारी जात में भी कमी बेशियां होंगी, लेकिन कभी बेशी हो जाए तो फौरन तौबा की तरफ पलटें। अल्लाह ताला तौबा करने से गुनाह भी खत्म कर देते हैं और अगर तौबा में ज्यादा इखलास हो तो उन गुनाहों को नेकियों में भी बदल देता है। इसलिए बेटा आज से तहैया करें। आप अपने वालिदैन से मोहब्बत करते हैं?
दुनिया फतह करना चाहते हैं। दुनिया का मतलब है फतह करना कि आप कामयाब होके जिए और कामयाब होके मरे। तो 3 बातें आप नोट कर लेंगे। पहली बात, बावुज़ू रहें और खासकर रात सोने से पहले वुज़ू करके सोएं। आपके घर की हिफाजत होगी। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची बात किसकी हो सकती है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर रिस्क में इजाफा चाहते हो तो बावुज़ू रहो। मैं आपको अपना बताता हूं कि मैं गवर्नमेंट की जॉब करके 6000 तनख्वाह लेता था और पंजाब कॉलेज लाहौर में कोचिंग करके 3000 लेता था। मेरी मंथली आमदन 9000 थी। रौ रफीक साहब थे बाबदा के रेवेन्यू ऑफिसर, उनके कमरे में एक फोटो कापी लगी हुई थी जिसपे किन्जुल अमाल के अकवाल थे। एक बद्दू ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 25 सवाल किए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाबात दिए। उनमें ये था कि अगर रिस्क में इजाफा चाहते हो तो बावुज़ू रहो। मैंने उस दिन से अमल किया और जहां पे मुझे 9000 महीने का मिलता था, अल्लाह ताला ने करम किया, मेरी मंथली आमदन 100 गुना बढ़ गई। आप वालिदैन का हाथ बढ़ा सकते हैं, बावुज़ू रहें, सूरह वाक़िया को याद करें और मगरिब के बाद जरूर पढ़ें। 2-4 दिनों में आप याद कर लेंगे। पॉजिटिव रहें, हलाल में बरकत है। मौत का इंतजार करें, किसी वक्त भी आ सकती है। जब हो आप बावुज़ू हो, आपकी सोचें ठीक हों, पॉजिटिव हों और आप पाकिस्तान के लिए और अपने साथियों के लिए बेहतर काम कर रहे हो। और अगर आप इस पर अमल कर जाते हैं तो एक बंदा भी कर जाता है, मैं समझूंगा मेरी निजात होगी। एक बंदा भी ये अमल करता है अपने, उसके वालिदैन की भी निजात हो गई, मेरी भी निजात हो गई। तो इसलिए खुद पे एहसान करें, अपने वालिदैन पे एहसान करें और मुझ पे एहसान करें। इसको अमल करें इस पे और इस बात को फैलाएं। और अल्लाह ताला तो बांटने के बहाने मांगता है, हम लेने वाले बने। तो वादे में बेटा पक्का अमल करेंगे। दाएं हाथ बुलंद करें जिससे अमल करना है, नीयत से ही जवाब मिल जाता है। शाबाश बेटा, आप हमारे लिए दुआएं करेंगे, हम आपके लिए करेंगे। और दुनिया बड़ी खूबसूरत है और मैं चाहता हूं कि जब आप इस पे अमल करें तो मेरे उसमें खाते में भी कुछ आ जाए, मेरे लिए बड़ी गनीमत होगी। अल्लाह ताला आपको दीन और दुनिया की कामयाबी दे। जज़ाकल्लाह।